Okay, we just go here, slideshow. There are some practice problem that I'm giving you all. You should practice it and submit it to it in the department, right? Whenever is your college time, you can come to the department and submit on my desk. Okay, these are the practice problems that you are supposed to answer. When I share the PPT, you'll get these questions. These are some easy problems, some difficult problems as well, but you should try all of them. Now, finally, we can talk about the concept of differentiation. We'll always try to start with a zero of it. So, what is a differentiation? We want to learn. Before learning more about differentiation, is my screen visible to everyone? First question. Yes, it is visible. Is it? Please check. Confirm in the chat box once. No? I think you need to pin it then. Just pin my screen. Is it visible now? Yeah, correct. Okay. So, before we learn more about this concept of derivative, let us just see this. This car was moving, right? If you see this car is moving. Whenever some object is moving, what do you think about the next concept? If something is moving, the car was moving. The next question that I'm going to ask is, it is moving at what speed, right? To understand the speed or to calculate the speed, what are the two things required to you all? How you calculate the speed of any object? Speed is what? It is always distance divided by time. These are the two things required, right? So speed is nothing but distance divided by time. So first thing is, okay, this, suppose it started from here, it travels this much distance. For an example, I might think it like in 10 hours, car travels around 500 kilometers. For an example, what is the speed of this car? Yes, anyone, what is the speed of this car? If it's a 10 hour, the car has traveled 500 kilometers. What is the speed of this car? Just use the formula there on the top. Yes, anyone? What is the speed of this car? It should be 50 kilometers per hour. It is nothing but 50 kilometer per hour. That means, not meter per second, just kilometer per hour. Totally fine. Okay, so over here, one thing that I can see, by using speed, I know the rate at which the car has covered the distance. Yes or no? The car has covered the distance of 50 kilometer per hour. So what I understood by this speed is, I'm trying to understand what is the rate of change of the distance with respect to time. I'm trying to understand how much distance the car can travel per hour. That is called as speed. But suppose if I reduce this concept, I reduce it like this. Now in 10 hour it traveled like this. There is some other car which is traveling like in 1 hour it is traveling some 60 kilometers. So the speed becomes what? The speed becomes around 60 kilometer per hour. It is exactly 60 kilometer per hour. What I am doing is, I am trying to reduce the time from 10-hour example. I am coming to 1 hour example. Let me just change the example. Suppose a car travel 100 meters in 10 seconds. The speed of the car is nothing but 10 meter per second. Yes or no? Yes. Okay, let me just reduce the time much more now. What I see is, suppose a train travel 20 meters in 1 second.
So the speed of the train must be 20 meter per second. Slowly, what we are doing is we are trying to reduce the value of time. And every time whenever I say speed, speed is what? Speed is nothing but rate at which the car or the object is covering that distance. If I say 20 meter per second, that means what is the rate of covering the distance? The rate is nothing but 20 meter per second. So suppose if I just try to reduce this 1 second to even a smaller number, very small number, for an example 0.0001. So I denote this by dt. Very small number, so we denote it by dt. In this small number of time, in this small amount of time, whatever distance my object has covered, I denote it by ds. D, capital D. Let us just write capital D. Right? This means small time. In this small time, let the distance cover be something like 0.2 meters. Now again, if I do this small d, that is nothing but the small distance for that small time, this is called as speed. Yes or no? Because हमने क्या किया, distance upon time किया, but धीरे धीरे मैंने क्या किया है, slowly I have reduced the value of time. And in that time, what I'm trying to get कितना distance cover किया, and I'm approaching towards my speed value. Because क्या होता है ना, हम लोग जब स्पीड के बारे में बात करता है तब हम लोग क्या बोलते हैं कि उसने एंटायर ड्यूरेशन में कितना स्पीड था उसका, बट वी डोंट टॉक अबाउट द स्पीड एट द पर्टिकुलर पॉइंट. यानी कि मैं ऐसा बोलूंगा, मेरे कार का या फिर मेरे ट्रेन का स्पीड बोरीवली स्टेशन जब वो निकलता है उस सेकंड पे कितना है, आफ्टर 5 मिनट उस सेकंड पे कितना है. इफ आई वांट टू आंसर दैट क्वेश्चन, आई नीड टू गेट दैट टाइम वेरी स्मॉल. राइट? जैसे कि हम लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूं, माई ट्रेन स्टार्ट्स एट 10 suppose am, and in 10:45 am it reaches the Matunga, which is 30 kilometers from my house. Right? So what is nothing but my speed in this case? Can you think of the speed in this case? Speed क्या होगा? Speed is nothing but distance कितना cover किया, that is 30 divided by 40 minutes, 45 minutes. This is nothing but my speed. बट अब मैं क्या सोचता हूँ ना, अब मैं स्लोली टाइम इंटरवल को कम कर दूंगा. मैं ये सोचूंगा कि कांदीवली यानी कि सपोज 10 से 10:45 का टाइम है और डिस्टेंस है सिर्फ अराउंड 25 किलोमीटर. व्हाट इज माय स्पीड? इट इज 25 डिवाइडेड बाय 35. और आगे बढ़ता है, सपोज अब मैं सीधा बांद्रा पहुंच जाता हूं, सो इट इज नथिंग बट 10 आई थिंक 5 मिनट्स का डिस्टेंस है, तो आई जस्ट राइट इट एज 40 to 10:45. And distance is of again 5 kilometers. The speed is what? Speed is nothing but 5 divided by 5, and it is kilometer per minute. But slowly अगर मैं सपोज ऐसा ले लेता हूं 10:40 1 second and 10:40 2 seconds. So I just want to know कि वो 1 second में speed कितना होगा. So that is the point at which you are trying to think of rate of change at a very small time. और इसी चीज को मैंने यहां पे बताने की कोशिश की. This dt is nothing but a very small interval, and in that very small interval you are just calculating कितना distance cover किया. And ये जो d by dt है उसी को हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव. डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव कुछ नहीं है. Derivative is nothing but rate of change. Rate of change is called as a derivative. यानी कि आप क्या करना चाहते हो? You want to check how your function is changing if your variable has changed very small amount. Right? So that is called as a derivative. In the process of obtaining the speed in the given by the difference of the distance function with respect to the time. That is, this means how quickly
द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। जैसे कि हम लोग ने यहां पर वही देखा ना, ट्रेन का इतने टाइम में इतना डिस्टेंस, इतने टाइम में इतना डिस्टेंस, इतने टाइम में इतना डिस्टेंस, वी स्लोली रिड्यूस दैट डिस्टेंस and ultimately the rate at which it is changing is called as a derivative of the distance. So what we are trying to understand in that case is the rate of change in a function at a point with respect to the variable is called the derivative. For an example, suppose मेरे पास एक फंक्शन है f of x, मुझे उसके डेरिवेटिव के बारे में बात करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा? डेरिवेटिव का मतलब मैं d लिखूंगा, यानी कि स्मॉल चेंज इन इट विथ रिस्पेक्ट टू dx। dx का मतलब क्या होता है कि स्मॉल चेंज इन x, और वो स्मॉल चेंज होने की वजह से ये f of x के अंदर कितना चेंज आया वो आपको ऊपर लिखना है, right? So it might be the case like I write it like f of divided by x2 minus x1, that is nothing but change in x। न्यूमरेटर में क्या हो गया? न्यूमरेटर में आएगा करस्पॉन्डिंग चेंज इन द फंक्शन, दैट इज नथिंग बट fx2 माइनस fx1। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताने की कोशिश की थी, d हम लोग कब यूज करेंगे? दैट इज टू रिप्रेजेंट द चेंज, राइट? तो dx क्या है? तो dx इज नथिंग बट अ चेंज, दिस चेंज फ्रॉम x1 टू x2, उसका वैल्यू चेंज हुआ। सो एट द सेम टाइम f of x का वैल्यू क्या चेंज होगा? वो चेंज होगा f of x1 से लेकर f of x2। सो व्हाट इज अ डेरिवेटिव? डेरिवेटिव यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन। और जब आप डेरिवेटिव निकालते हो तो डेरिवेटिव निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। सो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव इज डिफरेंशिएशन, बट व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस कोर्सेस, हम लोग ये थ्योरी पार्ट में इतना डिटेल नहीं जाएंगे, but what we can do is we can have a formula in our hand and try to get the basic formula of derivative. For an example, suppose अगर मेरे पास एक फंक्शन है f of x equal, सबसे पहला उसका लैंग्वेज समझ लेते। एक चीज नोट करेंगे हम लोग कि डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। Now I have a function f of x which is equal to y. I want to find out derivative of this y with respect to x। इसका मतलब क्या हो गया? मुझे ये देखना है कि अगर मैंने अपने x को थोड़ा सा चेंज किया तो मेरे y में क्या फर्क आएगा। The change in x will affect y, but at what rate that you want to do। मतलब कि it might be like अगर x का वैल्यू x1 से बढ़ के x2 हो गया और y1 का एट द सेम टाइम y1 बढ़ के y2 होगा, ये इसका जो रेशियो होगा उसी को हम लोग डेरिवेटिव। बट जैसे कि मैंने कहा, यहां पर हम लोग क्या चाहते हैं? यहां पर हम चाहते हैं जो dx है वो क्लोज टू 0 जाना चाहिए। वी वांट वेरी 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 स्मॉल, राइट? तो उस हिसाब से देखा जाए, अगर मैं लिखता हूं d f of x अपॉन dx, तो मैं क्या करता हूं? मैं करता हूं नीचे मुझे क्या चाहिए? ये ना, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट आई वांट अ चेंज इन माय एक्स। आई वांट अ चेंज इन माय एक्स। तो मैं क्या करता हूं? चेंज इन द एक्स को कैसे लिखेंगे हम लोग? x2 माइनस x1। ऊपर क्या लिखेंगे? ऊपर f ऑफ x है ना, तो लिखेंगे f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। बट एज आई सेड, मुझे इसको बहुत छोटा करना है, तो ऐसा करने के लिए हम लोग करते हैं दूसरे डेफिनेशन को यूज। इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग ये x जो है ना उसकी जगह पे a लिख देंगे फॉर अ बेटरमेंट फॉर अ फॉर्मूला। तो मैं क्या करूंगा? आई विल राइट इट लाइक लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू, सॉरी x नहीं, f ऑफ x, या फिर f ऑफ a लिख दे तो भी चलेगा, f ऑफ x से लिखते हैं तो भी बेटर रहेगा। f of x माइनस f of a
डिवाइडेड बाई x माइनस ए। मैं क्या कर रहा हूं, अभी भी मैं स्लोली स्लोली रेट ऑफ चेंज देख रहा हूं, बट इस बार मैंने वहां पर लिमिट लगा दिया। दिस बिकम्स अ फॉर्मूला फॉर द डेरिवेटिव। थोड़ा डिफिकल्ट है, और इसको अगर मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो हमारा बहुत अच्छा खासा टाइम जाएगा। बट मुझे इस कोर्स के अंदर आपको एक चीज देनी थी, वो थी ये फॉर्मूला जो है वो कहीं ना कहीं आपको चेंज के बारे में बताता है, रेट ऑफ चेंज के बारे में बताता है ना। अदरवाइज इसके डेरिवेशन के अंदर बहुत सारी चीजों के ऊपर बात की जा सकती है, बट अभी के लिए आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स टू जस्ट नोट दिस डाउन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव? अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है किसी भी फंक्शन का, तो यू राइट इट लाइक दिस। कैसे रीड करना है? आप इसको रीड करोगे, पहले डी को पढ़ो, डेरिवेटिव, बोलो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहां पर जो लिखा जाता है आपको बोलता है किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव लेते हो। सो डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, दैट उसको रीड कैसे करना है? डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसको लिखने का इजी तरीका क्या है? हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं और उसके ऊपर एक डैश कर देते हैं, उसका मतलब होता है डेरिवेटिव। और उसका फॉर्मूला क्या है? उसका एक इजी फॉर्मूला है ये। मैंने जो स्क्रीन पे ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्मूला है वो थोड़ा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो जाएगा आई थिंक। ये जो फॉर्मूला है वो थोड़ा इजी है। आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन टू नोट दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव। ये जो मैंने बॉक्स किया वाला फॉर्मूला नोट करेंगे हर कोई, लिखेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू दैट। यस, नोट किया सबने? यस एवरीवन? ओके ओके, लेट अस जस्ट ट्राई टू यूज दिस। वी विल बी हैविंग सम स्टैंडर्ड फंक्शन जिसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। सबसे पहला स्टैंडर्ड फंक्शन है ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू। हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव कैसे लिखना है, लिखना है डी एफ ऑफ एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल एक्स। सो इट इज डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस। यहां पर एक क्वेश्चन मार्क मेरे दिमाग में घूमने लगा कि भाई ये ए क्या है? ए यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपने डेरिवेटिव निकाला, राइट? सो कहां पे निकाला है? यहां पे मैंने लिखा कि डेरिवेटिव ऑफ दिस। सो मैंने डेरिवेटिव कहां पे निकाला? मैंने डेरिवेटिव निकाला x इक्वल टू ए पे। तो हम लोग उसको इस तरीके से लिखते हैं। नाउ अब इसके अंदर फॉर्मूला डालेंगे। सो इट इज लिमिट x टेंड्स टू a। एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है? वो है x रेज टू n। x की जगह पे a डाल देंगे तो ये हो जाएगा a रेज टू डिवाइडेड बाई x माइनस a। This is same as what? Anyone? This is same as what? X raised to n minus a raised to n upon x minus a. This is same as what? When the limit x tends towards a. ये लिमिट का फॉर्मूला हमने देखा था। देखो, लिमिट पढ़ने का रीजन यही था कि वो डेरिवेटिव में यूज होता है। What is answer for this limit? Yes, anyone? क्या करते थे? ये जो a रेज टू n है उसका पावर आगे और पावर को एक कम, a रेज टू n माइनस वन।
right? So what we are learning in this slide is the derivative of f of x with respect to x at x equal to a. तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं जहां पर भी x है वहां पे a लिख सकता हूं. सो df of a डिवाइडेड बाय dA. देखो मैंने x की जगह पे a लिखा ना, बिकॉज मेरे पास वहां पे लिमिट निकालना था. बट इजीएस्ट वे क्या होता है कि सब कुछ चीज को x में कन्वर्ट करो, बिकॉज हमें डेरिवेटिव निकालना है x रेज टू n का. तो हम लोग लिख देंगे डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n with respect to the variable x same as n x raised to n minus 1. ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव. If you want to find out derivative of x raised to n with respect to x, the answer is going to be n x raised to n minus 1, and it is derived by using the formula of the limit that we have learned. For an example, इस फॉर्मूला का थोड़ा यूज करने की कोशिश करते हैं. अगर सपोज आपको डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 5 निकालना है, तो आप क्या करोगे, पावर जो है उसको आगे ले लो और पावर को कम कर दो. अब अगर सपोज आपको सिमिलर कोई एग्जांपल पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि x रेज टू 7, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस केस? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 7? It should be 7x raised to 6. Okay, let me ask you some tricky question. What is the derivative of x raised to minus 2? What is the answer? क्या था फॉर्मूला, क्या बोलता है, जो भी पावर है उसको आगे ले लो और पावर में -1 कर दो. व्हाट विल बी द आंसर? वेरी गुड मिताली जी, इट विल बी -2x raised to -3. ओके, लेट मी आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन ओवर हियर, जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आई थिंक देखेंगे. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x, फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n होता है जो भी पावर लिखो एंड x रेज टू n माइनस. यहां पर x के ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो 1 होगा. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x? व्हाट इज द आंसर? यस, एनीवन? क्या करना है, पावर जो है उसको आगे लिखो. यस, पावर आगे लिखो और x रेज टू क्या करोगे, जो पावर है उसमें से एक कम कर दो. इट इज नथिंग बट x रेज टू 0. व्हाट इज x रेज टू 0? किसी को पता है, किसी भी नंबर के पावर में 0 होता है तो आंसर क्या आता है? If you take any number to the power 0, the answer is it is 1. So what we are learning is derivative of x with respect to x is equal to 1. सबको समझाइए, डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x 1 क्यों आया? Okay, let's see another examples. What is the derivative of this? यहां पर f of x equal to पॉजिटिव है, बिकॉज अदरवाइज आप मुझे बोलोगे सर ये तो फंक्शन ही नहीं है, वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? थोड़ा अजीब दिख रहा है लेकिन है सिंपल, बिकॉज हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए मैं पहले एफ ऑफ एक्स को इजीली, एक्स का स्क्वायर रूट का मतलब एक्स टू द पावर क्या होता है? यस, एक्स टू द पावर क्या होता है स्क्वायर रूट का मतलब?
यस इट इज द पावर हाफ। अगर मैंने डेरिवेटिव लिया किसका, x टू द पावर हाफ का, रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि मुझे पावर जो है उसको देना है और पावर को में से 1 देना। सो व्हाट आई कैन गेट इज दिस इज 1/2 x रेज टू -1/2। ये जो 1/2 है वो न्यूमरेटर में है, अगर वो नीचे चले जाएगा तो उससे अपना साइन जो है, पावर का जो साइन है उसको बदलना पड़ेगा। अभी नेगेटिव है, अगर वो नीचे गया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 टाइम्स x रेज टू हाफ। What is x raised to half? It is again root 2. So this is same as 1/2 root x. What we learn on this slide? We learn that the derivative of root x is same as 1/2 root x. Okay, this becomes another formula for us. एक बार रीड करेंगे और जो भी फॉर्मूला आपको नोट डाउन करते जाना है, बिकॉज इट वुड बी वेरी हेल्पफुल एट द एंड। इज इट ओके? समझा सबको? ये डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स कैसे निकाला हमने? डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। अरे नोट भी करके रखेंगे फॉर्मूलाज को। ओके ओके, कैन यू गिव मी द डेरिवेटिव ऑफ दिस? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1/x²? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। सबसे पहली चीज, इट शुड लुक लाइक x रेज टू n। तो यहां पर x² नीचे है, नीचे से ऊपर जाएगा तो उसके अपने पावर की साइन बदलनी पड़ेगी। सो इट इज x रेज टू -2। अब सिंपल है करना। नाउ ट्राई टू आंसर दिस। यस एनीवन? यस वेरी गुड, इट इज सिंपल था ना, -2 x रेज टू -3 इज द करेक्ट आंसर। जो भी पावर है आगे लिख दिया, पावर को एक कम कर दिया। वेरी गुड। जब नेगेटिव में से एक कम करोगे ना तो और ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, उस चीज का ध्यान रखना था। कैन यू गिव मी आंसर फॉर दिस वन? इफ इट इज 1/x, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1/x? सिमिलर तरीके से सोचो। Very good. So this 1/x is actually can be written as x raised to -1. So पावर जो है वो आगे लिखो, फिर पावर को एक कम कर दो। एवरीवन अंडरस्टूड? ये सब एग्जांपल्स कैसे हो रहे हैं एक्सेप्ट मिताली, जिन्होंने दोनों आंसर किया। अच्छा, इट इज मित्तल पटेल, नॉट मिताली। ओके, इट इज मित्तल पटेल। यस, एवरीवन एल्स अंडरस्टूड किस तरीके से हो रहा है? okay. बाकी लोग जाग रहे हैं? मैंने सबके लिए चाय ऑर्डर किया है, लेकिन बनाना आपको खुद को पड़ेगा घर पे, और कुछ नहीं। हाँ जी, एटलीस्ट रिप्लाई यस और नो। अच्छा, आर्यन इज अवेक। ओके
पवित्रा वेंट टू टेक मिल्क, चाय बनाना है ना. यस यस, देवयानी अग्रीड. ओके, बाकी लोग जाग रहे हैं, जागते रहो. ठीक है, आगे बढ़ते रहो. ठीक है, लेट्स थिंक अबाउट कांस्टेंट. इफ आई टेल यू इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, माय f of x is a constant. What do you think of a constant का डेरिवेटिव? डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट. Yes. What do you think the answer should be? आंसर क्या होना चाहिए इसका, इस चीज का? कांस्टेंट का डेरिवेटिव. डेरिवेटिव का मतलब क्या था? डेरिवेटिव का मतलब क्या था? डेरिवेटिव का मतलब था, यस एनीवन? What is the meaning of the word derivative? When we derivate, what do we mean? Derivative means what? Anyone? It's nothing but rate of change. अगर मैं बोलता हूं कांस्टेंट है, मतलब कि उसमें कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, तो व्हाट इज द रेट ऑफ द चेंज? एनीवन? व्हाट शुड बी द आंसर? There is no change. So what is the rate of change? It must be derivative means rate of change. Constant means change नहीं होता है. So what is the rate of change? बाबा अगर चेंज हो ही नहीं रहा है तो क्या रेट दोगे आप उसको? It must be zero, not constant. It must be zero. But देखो ना, they both the things are opposite. If I tell you I am traveling at the speed of 10 kilometer per hour for the entire duration, so at what rate I am changing my speed? I am not at all changing my speed. My speed का rate of change is zero. I am not at all changing my speed. अगर चेंज ही नहीं है तो उसका रेट कैसे निकालोगे? अगर मैं बोलता मैं अपनी स्पीड को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूं तो आई कैन टॉक अबाउट रेट ऑफ चेंज. देयर वुड बी, अगर आई एम इंक्रीजिंग तो आई से इट इज पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज. इफ इट इज डिक्रीजिंग आई से नेगेटिव रेट ऑफ चेंज. बट इट इज नॉट चेंजिंग, दैट मींस रेट ऑफ चेंज इज जीरो. चेंज हो ही नहीं रहा है. समझ रहा है आंसर जीरो क्यों आना चाहिए? इफ यू टेक डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट, the answer must be zero because the constant never change. So what is the change? No change. Answer is zero. याद रखेंगे, the derivative of a constant is always zero. Suppose if I ask you what is the derivative of 2, आंसर क्या देते हो आप मुझे? What is the answer? At what rate 2 changes? 2 ही रहता है ना, उसको कुछ फर्क पड़ता है क्या? It will never change. 2 is a constant and you are trying to think about at what rate 2 will change. 2 will never change. Hence the answer must be 0. Answer must be 0 because it is a constant, or constant का derivative क्या होगा? Similarly, suppose if I ask you what is the derivative of pi, what is your derivative of pi? The answer is 0 because अगर वो constant है तो आंसर उसका 0 ही आने वाला. याद रखेंगे, ठीक है? So now comes a weird function, but we will get the formula for this. We just wrote down the formula of derivative of the function which looks like a raised to x. So if your function is a raised to x, at what range this a raised to x changes with respect to x? That is given the formula. A raised to x का derivative का होता है, सबसे पहले a raised to x लिख दो, जो भी है वो लिखो. उसके बाद लिखो log a to the base e, यानी कि जो बेस था ना वो लिखना है और उसके बेस में आएगा e. यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करनी है स्टूडेंट्स को. मैंने क्या देखा है ना, इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला स्टूडेंट्स ये बना देता है. अगर उनको बोला कि राइट द आंसर फॉर दिस a raised to x,
उन लोग क्या करता है एक्स ए रेस -1 करता है। ऐसा नहीं करना है। हमने क्या सीखा था, इफ यू हैव एक्स रेस टू एन, उसका डेरिवेटिव होता है एन एक्स रेस टू एन -1। दोनों में फर्क क्या है, ये वाला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू एन। फर्क क्या है कि यहां पर आपका जो वेरिएबल है वो पावर में जाता है, और यहां पर आपका जो वेरिएबल है वो बेस में है, इसीलिए उनके फॉर्मूला में भी डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि यहां पर इफ दिस इज द क्वेश्चन, f of x equal to 5 to the power x and the derivative of 5 raised to x by using the formula, can you tell me what is the derivative of 5 raised to x? फॉर्मूला स्क्रीन के ऊपर ही है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? use the formula, this is the formula, just note this down and try to use it in this example. What is derivative of 5 raised to x? What is the derivative of 5 raised to x? क्या कहता है फॉर्मूला, क्या कहता है कि आपके पास अगर a रेज टू x दिखता है तो उसको एज इट इज सबसे पहला लिखो, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो log 5 टू द बेस e के साथ। अगर सपोज सिमिलरली अगर मेरे पास f ऑफ x होता कुछ 12 रेज टू x, तो मैं क्या करता, मैं इसको लिखता, इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव दिखाने का दूसरा तरीका क्या आता है, f डैश ऑफ x लिख देना। सो डेरिवेटिव ऑफ दिस इज नथिंग बट a रेज टू x के फॉर्म में ना, तो क्या लिखना है, a रेज टू x जो है लिख दो, फिर log a यानी कि जो बेस यहां पर उसको लिख दो 12, एंड log का बेस होगा e। अगर सपोज मैंने आपको फंक्शन दे दिया f ऑफ x इक्वल टू e रेज टू x, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e x देन? सेम फॉर्मूला लगा के देखो क्या आएगा आंसर। हाँ जी, बाकी लोग प्लीज रिस्पॉन्ड टू दिस, दिस इज इजी क्वेश्चन, इट इज e रेज टू x। वेरी गुड मित्तल जी। हाँ जी, ये देखो e रेज टू x लिखना था, फिर log e लिखना था, log e टू द बेस e आएगा, बट log e टू द बेस e क्या होता है, ये जो चीज है वो खुद तो 1 ही हो जाएगा, log e टू द बेस e, तो आंसर आया e रेज टू x। सो हियर वी लर्न वन मोर थिंग, अगर log a टू द पावर x है उसका डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x log a टू द बेस e। लेकिन अगर आप डेरिवेटिव निकालते हो e रेज टू x का, तो आंसर सेम फंक्शन आ जाता है, इसका डेरिवेटिव वो खुद ही होता है। ठीक है, द डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x इज इटसेल्फ, दिस इज अ वंडरफुल फंक्शन कि जिसका डेरिवेटिव वो खुद ही आता है। बाकी सब में क्या था ना कि डेरिवेटिव निकालने के बाद एक नया फंक्शन मिल रहा था, बट यहां पर हमें मिलता है डेरिवेटिव निकालने के बाद सेम फंक्शन। ठीक है, सबको समझा ये दोनों फॉर्मूलाज? नोट डाउन करेंगे फॉर्मूलाज को। Okay, if you're done with the formula, let us just see the next part. Yes, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने देखा कि डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x जो है उसका आंसर आ जाता है e रेज टू x, और कुछ नहीं, e रेज टू x, सेम थिंग। नाउ वी लर्न अ बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। हम लोग दो बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में इस सेशन में बात करें। सबसे पहला रूल है डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ फंक्शन। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे पता है कि डेरिवेटिव ऑफ
एक्स स्क्वायर क्या होता है ये? एनीवन? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? चलेंगे, रूल लगाएंगे। हमारे पास रूल क्या है डेरिवेटिव का? एक्स रेज टू एन। एक्स रेज टू एन जैसा दिखता है तो पावर जो है उसको आगे ले लो और पावर को एक कम कर देना। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? इट इज जस्ट 2x, नथिंग एल्स। Also, if I ask you, what is the derivative of 2 raised to x? आंसर क्या आएगा? What is derivative of 2 raised to x? Yes, it is 2 raised to x log 2. Very good. Log 2, and I assume it is base e only, that every time you write. So now यहाँ पर क्या था ना, फॉर्मूला से ये हो गया। बट अगर सपोज यू वांट टू कैलकुलेट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वेयर द फंक्शन इज एक्स स्क्वायर 2 रेज टू एक्स, अब क्या करोगे? अब तो इंडिविजुअल है नहीं, इंडिविजुअल थे तो फॉर्मूला पता था, बट यहां पर तो दोनों को ऐड कर दिया गया। बट बाय द रूल ऑफ डेरिवेटिव वी विल नो दैट कि जब कभी भी आपके पास दो फंक्शन है, जैसे कि आपका कोई एक फंक्शन दो चीजों का सम है, यू वांट टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v, अगर आपको u प्लस v का डेरिवेटिव निकालना है तो आप क्या करो, आप पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, प्लस कर दो सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव। जैसे कि यहां पर मुझे क्या निकालना था? मुझे निकालना था डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू एक्स, इसका डेरिवेटिव चाहिए था ना। तो मैं क्या, सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल दूंगा और उसके बाद वो ऐड कर दूंगा विद द डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज टू एक्स। तो आंसर क्या बना? आंसर बना 2x प्लस 2 रेज टू एक्स लॉग 2 टू द बेस। ठीक है, ये रूल समझ रहा है? क्या कहता है कि अगर एडिशन है बीच में तो आप डेरिवेटिव बांट दो सबको, पहले वाले को भी डेरिवेटिव दो, दूसरे वाले को भी डेरिवेटिव दो। ये रूल सिर्फ आपको उतना ही बताता है। समझ रहा है रूल क्या कह रहा है? ओके ओके, क्या आप मुझे इसका डेरिवेटिव बता पाओगे? क्या होगा इसका डेरिवेटिव? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस y? सो डेरिवेटिव लिखना है तो आई जस्ट राइट y डैश, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ y को हम लोग y डैश से डिनोट कर सकते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? वेरी गुड, इट इज गोइंग टू बी, क्या करना है? करना क्या है? तो यू वांट फाइंड डेरिवेटिव ना, सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, आपको ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हम लोग इस डेरिवेटिव को दोनों को बांट देंगे। सो ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? जैसे कि मित्तल जी ने कहा, इट इज 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज नथिंग बट 3x स्क्वायर। सबको समझा ये सॉल्यूशन किस तरीके से आया? Okay, let us just solve few more problems based on that. Can you answer this question? What is the derivative of 1 plus x a raised to x? Try to think in the similar pattern.
What is the derivative of 1 plus a raised to x? Very good. What we want to find? We want to find out derivative. So it is nothing but y dash. डेरिवेटिव किसका निकालना है? डेरिवेटिव निकालना है 1 प्लस ए रेस्ट का। तो मैं क्या रूल कहता है कि दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, राइट? सो डेरिवेटिव ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू x विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 0 प्लस व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? डेरिवेटिव ऑफ दिस इज a रेज टू x log टू द बेस। ठीक है, इसीलिए सीधा सीधा लिखेंगे a रेज टू x log a। सपोज अगर मैंने यहां पर ऐसा लिख दिया होता, a की जगह पे यहां पर मैंने e लिख दिया होता, तो आंसर क्या होता? 1 की जगह पे अगर मैंने e लिख दिया होता तो आंसर क्या आता? What is this? E is that Euler's constant, जिसका वैल्यू 2.71 irrational नंबर जो है ना वो वाला E। What is the answer in that case? Is it same or it is different? It should be same because वापस से 1 की जगह पे E लिखोगे, E भी खुद तो कांस्टेंट है, उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? उसका रेट ऑफ चेंज होगा 0 ही और कुछ नहीं। ठीक है, सबको समझा ये प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व हुआ? Yes, everyone. Okay. Okay. Let's see some more problem of the similar type. Can you answer this question? I give you 2 minutes time. Try to answer this question. Try to solve this very simple question. You can type the answer in the chat box or you can unmute yourself and answer. क्या करना है? हमें सिर्फ डेरिवेटिव को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना? Yes, anyone? क्या कर रहे हो? इतना टाइम? इजी था क्वेश्चन। वाई डैश आपको क्या निकालना है? यस, आई वाज एक्सपेक्टेड। ओके, एज एक्सपेक्टेड शी आल्सो वेंट टू द सेम पार्ट। I would just like to correct it. Okay, it is y dash equal to
क्या करना है आपको, डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस e रेज टू x रूट टू प्लस रूट एक्स। तो मतलब कि क्या करना है, हमें इसको तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट टू प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स, एनीवन? What is derivative of e raised to x? As I think Mittal ji ने already लिखा हुआ है कि it is e raised to x only. But I'll write to see what is the derivative of root 2. Root 2 का derivative क्या आता है? Root 2 का rate of change क्या होगा? Root 2 की value change होती है क्या? What is the derivative of root 2? Yes. Very good, Arya. So derivative of root 2 must be 0. And the derivative of root x, which you wrote correctly, is 1 by 2 root x. है ना? So एक ही चीज समझ ली थी कि ये रूट का डेरिवेटिव 0 होगा, बाकी कुछ नहीं। तो इट इज e raised to x प्लस 1 by 2 रूट x. इज इट ओके? सबको ये सोल्यूशन समझ रहा है आप किस तरीके से किया हमने? Okay. I'll give you a few more problems. Let's just try whether you are able to solve this or not. But I think ये रूल तो बहुत सिंपल है। अगर सपोज आपके पास प्लस की जगह पे बीच में माइनस है, तो क्या करोगे आप, माइनस के ऊपर भी उस डेरिवेटिव को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जैसे कि इस एग्जांपल में आप मुझे आंसर क्या दोगे? व्हाट इज द आंसर इन दिस केस? क्या करना है, अब डेरिवेटिव जो है वो माइनस के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना। एक चीज याद रखेंगे, डेरिवेटिव जो है वो प्लस और माइनस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ठीक है, हम लोग उसको पढ़ेंगे नहीं बिकॉज इतना डीप लेवल में नहीं जाना है, बट याद रख सकते हैं इस चीज को। वेरी गुड। सो व्हाट इज माय y डैश? y डैश क्या करता है, इसका डेरिवेटिव e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, बीच का माइनस एज इट इज, x रेज टू 5 का डेरिवेटिव 5x रेज टू 4। समझा सबको ये डेरिवेटिव कैसे आया? ओके, just try to, we will have a one more rule as you see कि यहां पर क्या था ना, कि मैंने अभी भी बताया कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला रूल नहीं पढ़ेंगे, बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन वाला रूल नहीं पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट वाला रूल तो बहुत सिंपल है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको पूछता हूं डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 8, व्हाट इज आंसर? x रेज टू 8 का डेरिवेटिव क्या होगा? Yes, it is going to be 8x raised to 7. But if I ask you, what is the derivative of 2x raised to 7? 2 times x raised to 8. अब आंसर क्या आएगा? अब x raised to 8 अकेला नहीं है, अब उसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो कांस्टेंट क्या है? वो कांस्टेंट है 2। बट डेरिवेटिव के रूल के हिसाब से अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आप उस कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर ला सकते हो। याद रखेंगे, अगर
कांस्टेंट अकेला होता, अगर वो अकेला है तो उसका डेरिवेटिव 0 है, बट उसी कांस्टेंट के साथ अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो यू कैन राइट दैट कांस्टेंट अहेड, सो इट बिकम्स 2 times derivative of x raised to 8 upon dx। और इसका आंसर तो हमें पता है, अभी अभी जैसे हमने देखा, इट इज 2 times 8 x raised to 7, 2 8s are 16, x raised to 7 is the answer, right? देखो यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन शायद से हो सकता है, लेकिन अगर जिसने अच्छे से सुना है उसको क्लियर हो जाएगा कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, but if the constant is multiplied with the function, then that constant can be taken out. So if my y is nothing but k times u, where k is nothing but some function, k is nothing but some constant, and y is some function of x, and you are taking the derivative, डेरिवेटिव लेते वक्त क्या होगा, ये k जो है वो बाहर आ गया डेरिवेटिव के। ओके, आई थिंक हमने सेम एग्जांपल को ही डिस्कस कर लिया। कैन यू आंसर मी दिस क्वेश्चन? इट इज 5 times 2 raised to x, व्हाट इज आंसर? देखो याद यहां पे देखना, ऑब्जर्व करना है, 5 जो है वो एक नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, सो व्हाट इज योर आंसर? किस तरीके से देखेंगे तो थिंक ऑफ dy by dx सेम एज d 5 times 2 raised to x divided by dx, बट ये 5 तो कांस्टेंट है तो वो बाहर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 5 d by dx of 2 raised to x। ये क्या है, ये a जैसा दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 5 times 2 raised to x, 5 times 2 raised to x log 2 to the base e। सबको ये सॉल्यूशन समझा किस तरीके से हमने कांस्टेंट को बाहर लिया? यस और नो? ओके, yes everyone else, we can take a constant outside of the derivative। अगर कांस्टेंट अकेला होता तो रेट ऑफ चेंज 0, बट अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे आप डेरिवेटिव के बाहर निकालो, बिकॉज वो उसको इफेक्ट नहीं देता है, रेट ऑफ चेंज में वो इफेक्ट नहीं होता है, वो वहां पर जो है उसको बाहर मल्टीप्लाई कर दो बस। Okay, I don't think we should directly start with this. Okay, I think a small introduction to integration can be done, है ना? We will do a small introduction to integration, a 5-10 minutes introduction, and then in the next class we'll go detail about integration and some problems of derivative। यहाँ पे जब हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं, so that's actually nothing but the reverse process of differentiation। For an example, मैं आपको पूछता था कि डेरिवेटिव ऑफ, इजी क्वेश्चन लेते हैं, सपोज इफ आई आस्क यू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, ये क्या होता है? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब? बाय द फॉर्मूला वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज नथिंग बट 3x स्क्वायर। अगर मैंने इसी चीज को उल्टा लिख दिया तो वो हम लोग लिखते हैं ये फंक्शन आपका इनपुट होगा, यानी कि 3x स्क्वायर जो है उसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का नोटेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन का नोटेशन होता है ऐसा, बड़ा वाला s लिखते हैं, राइट? बीच में हम लोग फंक्शन लिखते हैं और एट द एंड वी राइट कि इंटीग्रेशन किस वेरिएबल के फॉर्म में कर रहा है। जैसे कि यहां पे फंक्शन किस में, x में, तो विल राइट dx। सो ये हो गया नोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। मतलब कि डेरिवेटिव अगर 3x स्क्वायर है तो वो फंक्शन क्या होगा? वो फंक्शन होगा x क्यूब। डेरिवेटिव में हम लोग क्या लिखते हैं? डेरिवेटिव में लिखते हैं ऐसा कि हम लोग लिखते हैं d
फंक्शन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू dx, ऐसा लिखते हैं। बट इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन में वो स्क्रिप्टेड बड़ा वाला s लिखेंगे, फिर फंक्शन लिखेंगे और फिर क्या वेरिएबल है वो लिखेंगे। ये हो गया उसका नोटेशन। और उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है इट इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव को अगर आप उल्टा करते जाओगे तो इंटीग्रेशन होता है। फॉर एन एग्जांपल, और एक एग्जांपल लेता हूं, मुझे पता है कि डेरिवेटिव ऑफ 5 रेज टू एक्स क्या होगा, वो होगा 5 रेज टू एक्स log 5 to the base e। ऐसी चीज को उल्टा लिख देना है। तो डेरिवेटिव 5x क्या आया, ये आया। तो इस चीज का इंटीग्रेशन क्या आएगा, उस चीज का इंटीग्रेशन दूसरा वाला आएगा, राइट। सो आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ 5 रेज टू x log 5 to the base e। देखो क्या लिखा, इंटीग्रेशन का साइन किया, फंक्शन को लिखा, फिर उसके बाद एंड कैसे करना है इंटीग्रेशन को, वेरिएबल लिखना है। वेरिएबल क्या है, x, तो लिखेंगे dx। द आंसर इज गोइंग टू बी द फर्स्ट थिंग, दैट इज नथिंग बट x raised to 5। If I ask you the question, what is the integration of 1 by 2 root x? Can you answer me this? What is the integration of 1 by 2 root x? You just have to think the reverse way. फंक्शन नहीं दिया है, आंसर दिया है, आपको ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव ये होता हो। विच इज दैट फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ये होता हो? यस, किसी को याद है? ऐसा कौन सा फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स आता था? हाँ जी, एनीवन? चेक करो, देखो लिखा होगा कहीं आपने। Yes, the answer is going to be root x. सपोज अगर मैं आपको पूछता हूं व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x, देखो इंटीग्रेशन का साइन, फंक्शन लिखा, फिर किस वेरिएबल में, dx। कैन यू टेल मी ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव e रेज टू x आता है? दैट इज नथिंग बट बाय आंसर ऑफ इंटीग्रेशन। yes yes, the answer is going to be e raised to x खुद ही है, ठीक है। so this is nothing but the intro to integration, but what we do, we just try to solve one problem over here. I give you y is same as 2 by x plus 3 e raised to x plus e raised to 2 plus लास्ट वन, ज्यादा नहीं, 3 रेज टू एक्स। मुझे क्या करना है, मुझे इस चीज का डेरिवेटिव निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, dy बाई डी एक्स। हमें पता है डेरिवेटिव जो है वो सबको मिल जाएगा। सो वो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 2 डेरिवेटिव ऑफ 2 बाई एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3 e रेज टू एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ e raised to x plus derivative of 3 raised to x. Now over here मुझे पता है कि यहां पर ये जो 2 है वो तो सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि ये कांस्टेंट है जो बाहर आना चाहिए। यहां पर भी ये जो 3 है वो भी बाहर आना चाहिए क्योंकि वो कांस्टेंट है। बट यहां पर क्या था, यहां पर e स्क्वायर। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द डेरिवेटिव ओवर हियर? इसका डेरिवेटिव क्या होगा?
What is the derivative of e square? E square का डेरिवेटिव इट शुड बी जीरो बिकॉज वो कांस्टेंट है, तो वो तो जीरो हो गया। अब आगे यहां पर ये 2 बाहर आया था, लेकिन अंदर बचा क्या है? अंदर बचा है डेरिवेटिव ऑफ 1/x। 3 बाहर आया, लेकिन बचा क्या अंदर? डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x। फिर एट द एंड क्या बचा? ये क्या है पता है? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 3 रेज टू x? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 3 रेज टू x? What is the derivative of 3 raised to x? Anyone? A raised to x का फॉर्मूला लगाओ। Yes, it is 3 raised to x log 3। everyone यार, सिर्फ मित्तल अकेले कर रहे हैं आज। ओके, सो आगे क्या करेंगे? देखो ये आगे 2 एज इट इज लिख देते हैं 2। फिर व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1/x? हमने इसको सॉल्व भी किया था। 1/x का डेरिवेटिव आया था -1 इंटू एक्स रेज टू -2 प्लस 3 जो है एज इट इज। ये क्या था? ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है वो खुद ही, ये हो गया ई रेज टू एक्स प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हो गया 3 रेज टू एक्स लॉग 3 टू द बेस ई। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स -1 इज -2। एक्स रेज टू -2 कितना होता है? वो होता है एक्स स्क्वायर, लेकिन डिनोमिनेटर में, प्लस 3 रेज टू ई 3 इंटू ई रेज टू एक्स प्लस 3 रेज टू एक्स log 3 to the base, right? If you can observe in this case, हमने दो प्रॉपर्टी को यूज किया कि हमने एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके साथ साथ कांस्टेंट को भी बाहर निकाला। ये एग्जांपल समझा सबको? किस तरीके से सॉल्व किया हमने? चार चार टर्म थे, फिर भी इट इज वेरी इजी because we have the basic formula, we have the basic rule, so we just apply them. Is it fine everyone? Okay, so let me just try to derive one more formula for integration. Okay, just can you think of this? If I ask you what is the integration of 3x square? What is the integration of 3x square? यानी कि ये 3x square फंक्शन है, कैसे एंड करना है? लिखूंगा dx बिकॉज फंक्शन के अंदर वेरिएबल x था। आंसर क्या आएगा? आपको ये सोचना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है। कैन यू थिंक ऑफ दैट? यस, एनीवन? ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता हो? व्हाट इज दैट फंक्शन? थ्री एक्स स्क्वायर, ऐसा कौन सा फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आता है? एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला लगाओ, एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव के हिसाब से सोचो। थिंक ऑफ दैट पार्ट। एक्स, यस इट इज। नाजी नाजी नाजी। ओके, लेट मी जस्ट आस्क यू वेरी वेरी वेरी, बाबा मित्तल जी, आप क्या कर रहे हो? आप इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो। मैंने आपको उल्टा क्वेश्चन पूछा। मैंने आपको ये पूछा कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ये होता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने आपको डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 4 पूछा, आंसर क्या आएगा? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x raised to 4?
Yes, Kashish, you also can answer, right? What is the derivative of x raised to 4? Yes, it is 4x cube. Now, what I ask you is, I ask you ऐसा कौन सा function होगा जिसका डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर? कैन यू गेस नाउ? मित्तल जी, अगर आपके पास a रेस टू एक्स होता ना तो आप सही बोल रहे हो. अगर मैंने आपको बोला रहता ना कि 4 रेस टू एक्स, तब आपका डेरिवेटिव वो आता है ना. 4 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है 4 रेस टू एक्स log 4, है ना. मित्तल जी, आप क्या कर रहे हो ना, आप अगर ये देखना है कि x जो है यानी कि वेरिएबल अगर बेस में है तो पावर को एक कम करके आगे लेके आओ, वो वाला रूल है. अगर बेस खुद पावर में है तो उसको लॉग वाला फॉर्मूला लगता है. इस तरीके से याद रखो. और ये कंफ्यूजन होता ही है, मैंने देखा है, नॉट ओनली यू, थोड़ा टाइम लगेगा. बट द करेक्ट फॉर्मूला इज दिस. द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x raised to 4 is 4x cube. नाउ कैन एनीवन गेस ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आता हो? कैन यू सी ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आएगा? x रेस टू 4 के लिए आया 4x क्यूब, तो x के कौन से पावर के लिए ये आएगा? व्हाट इज इट? क्वेश्चन मार्क. एनीवन? इट मस्ट बी x क्यूब, है ना. x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर. अगर x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर है तो उसी चीज को उल्टा लिखोगे तो इंटीग्रेशन हो जाता है. कैसे? अगर x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब. ठीक है, आज का सेशन हम लोग एंड करेंगे बाय दैट वन कॉन्सेप्ट दैट इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव. और आगे तो हमने क्या सीखा था? आगे हमने ये सीखा था कि डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज. फिर मैंने आपको उसका थोड़ा ब्रीफ आइडिया बताने की थोड़ी कोशिश की, बट ज्यादा डिटेल में नहीं गए बिकॉज वो ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है. फिर बट उसके बाद से हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया, कुछ फॉर्मूला को हमने खुद से लिखा और उसको यूज करने की कोशिश की, कुछ डेरिवेटिव के 3 रूल हमने देखे, और एट द एंड हम लोग ने इंटीग्रेशन के बारे में बातें की. Right? So that's all for this session. If you have any doubt, difficulty, you guys can ask.